you the basic idea. So basic idea is what we need to do so that this last 10, 11, 12 day become very effective for our success. So I'll give you a very simple idea, very simple tool. That is the topic which are the most important. They should be at your fingertips. Okay, so we'll start with important topic in this. यार इंटर्नशिप का तो भाई क्या ही बोलें यार. ठीक है, try to like we have already talked to the government and they say we don't have infrastructure because they never expected that there will be so many FMGs coming and trying. So that's again a issue of infrastructure. Okay, so let's hope soon there will be more seats available. That's the case. Already राजस्थान में केस चल ही रहा है आपका. चलो, so I think let's continue with the thing कि what we need to do. So first is not a single day should be wasted. Waste नहीं करना. Time is very less. So make sure that you are daily getting 14-15 hours of output. ठीक है, these 10 day will not come again. You can sleep 16 hours after that till the results come. Okay, but now sleep should be not minimum as in 2 घंटे, but at least sleep for 6 hours. Okay, not more than that. After 6 hours of sleep you should be able to study and get an output of 14 to 15 hours per day. So that's why I want 14-15 hours. Okay, और करना क्या है, PYQ based study. नाउ वी हैव टू गो रेट्रोग्रेड मोड. वो बंद कर दो, नोट्स पढ़ना, आरआर पढ़ना या कोई ऐसे समरी नोट्स पढ़ना या हमारी कोई चैंटिंग है, रिवीजन है, कुछ ना करो अभी. नाउ रीडिंग विल नॉट बी यूजफुल. वाई? बिकॉज व्हेन द एंड टाइम कम ना, वी टेंड टू पैनिक एंड वंस यू पैनिक यू आर नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सन इज सेइंग. ठीक है, सो राइट नाउ अभी कुछ दिमाग में जाएगा नहीं. अभी उल्टा करो, आप दिमाग से पूछो तू बता इसका आंसर क्या है, टेल what is the answer of this, and now your brain will become better focused. Reason, when you ask someone to stand on the stage and say गाना गा, और यहाँ पे खड़े होके जो भी है कोई जोक सुना, परफॉर्म, people freeze. Do the reverse. What the reverse is? Reverse is start doing question answer. कि at the stage बोलो any doubt you have, any. Now suddenly the person is able. Why? Because interaction make the load half. So that's why interactive study is important, and the best way to interact right now is your questions. Look at the question as the examiner कि NB वाला सामने खड़ा है और वो बोल रहा है कि what the drug of choice for let's say migraine. तो आप बोलोगे अच्छा माइग्रेन में ट्रिप्टान, देखो सही हो गया आंसर, वेरी गुड. सो नाउ इज द टाइम फॉर फोकसिंग मोर ऑन द क्वेश्चन बेस्ड स्टडी. डेली मेक श्योर डूइंग एटलीस्ट 400-500 MCQs. पॉसिबल है. ठीक है, 1 घंटे में 50 भी क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, तो 10 घंटे में 500 क्वेश्चन की एवरेज आराम से आ जाएगी. सो मेक श्योर यू आर डूइंग रिवर्स वे वेयर क्वेश्चंस आर सॉल्व. दैट इज मोर. चलो, थैंक यू वेरी मच. ओके, yeah, study hard, that's the main thing. Yes, and not only try to study questions but questions के बाद फिर explanation आपकी थ्योरी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बस कर लिया मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, आंसर तुमने नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कर लिए, वो कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना, explanation is also important. Yes. So your advice, Dr. Shaurya? Yes, sir, same advice. Go with the PYT's approach, previously asked topics approach. Go through the topics and go through question, read the entire topic. जिसमें क्वेश्चन गलत हो रहा है उन टॉपिक्स को जस्ट सर्कुलेट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन. रिपीटेटिव रिवीजन से वो टॉपिक्स हो जाएंगे. एंड सम वोलेटाइल टॉपिक जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स हो गया, ये सब भूलने वाली चीजें हैं. एपोप्टोटिक मार्कर्स हो जाएगा. हाँ, तो वोलेटाइल टॉपिक्स है, दीज यू विल हैव टू रिमेंबर एनी हाउ. और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट सेट TNM स्टेजिंग हो गया, सर्टेन कार्सिनोमास का, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया, सर्वाइकल कार्सिनोमा, दे आर इंपॉर्टेंट. फॉर दैट यू विल हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. और बाकी वही जो सर ने बताया क्वेश्चंस वाला अप्रोच करो, थोड़ा चैंटिंग वगैरह, इट विल बी हेल्पफुल. एंड रिवीजन, समरी रिवीजन नोट्स एंड समरी रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे जो आते हैं, that will be more than enough for just brushing up. If some subject is pending, then I agree, you can use that subject video. जैसे मान लो you want to see my physio, I don't, or physio medicine is fine, but too much focus कि भाई मैं सर लास्ट तक वही करता रहा, अब नहीं. जो क्वेश्चन ज्यादा करेगा they will surely pass. जो सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा, अभी भी 10 दिन पहले भी थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो यार, तुम्हें याद ही नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ. क्लियर है? व्हाट यू कैन रिमेंबर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ रिवीजन. सो दैट इज वाई लास्ट में से लास्ट के ओवर में क्या करना चाहिए, सिंगल डबल स्ट्राइक चेंज या सिर्फ हवा में चौका छक्का बस. तो दैट इज द एडवाइस. ओके, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि शुड वी कैरी ओरिजिनल. भाई दे विल चेक योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, डोंट हैव टू सबमिट. डिग्री तो तुम्हारी है भाई, उनको क्यों दोगे. सो डिग्री विल रिमेन विद यू, वी जस्ट नीड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. ओके, yeah, anything you want to ask, discuss, you can just message us, we'll be there to discuss, then we'll give some important topics. Yeah, PDF is sufficient for image based, we have already uploaded, that is sufficient. And one very good information that in Jan we are launching my expected question session
will be taking daily on YouTube, and I'll be covering all the expected questions for the, yes, 12th Gen exam. And last time people Very gave a helpful, very feedback, helpful, very 30 positive क्वेश्चन feedback was केम, there. ये लास्ट टाइम का फीडबैक है, 30 हाँ. क्वेश्चन केम. इस बार आई एम प्लानिंग कि लेट्स गो फॉर 150 प्लस टारगेट. इमेजिन 150 क्वेश्चन आर दियर विच वी हैव ऑलरेडी कवर. कितना मजा आ जाए. ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो है, मान लो आ गया आपका मेनिंजाइटिस, उसमें था कि ग्लूकोज इज लेस, लिम्फोसाइट्स आर मोर एंड प्रोटीन इज मोर, या कॉबवेब, टीबी लगाया, आनंद की अनुभूति, मजा आ गया. अगला क्वेश्चन, पेशेंट आया, उसको हेडेक है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग हो रखी है. ठीक है, व्हाट विल बी नेक्स्ट, फियोक्रोमो लग रहा है, उसके अंदर यूरिन चेक करेंगे, मेटानेफ्रिन और वीएमए, ये भी अपना सही हो गया. फिर आ गया 5HIAA बढ़ा हुआ है, कार्सिनोइड, आहा, 3 क्वेश्चन निकल गए. चौथा, मान लो क्वेश्चन आ गया आपका फिजियो में, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बोर हेल्डन. इसलिए कह रहा हूँ द टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट एंड आस्क मल्टीपल टाइम, वी आर फोकस मोर ऑन डूइंग दैट. ओके, provisional, okay, again you need some document ki whether your documents are, you know, like they are notarized, they are authentic, like you've not got the original degree, then provisional will work. But you need to have a basis ki like everyone got and you have not got, maybe some issue, then they will ask you. So better get all the documents ready. Okay, और अभी ये सब छोड़ो यार, अभी तो पास होने की सोचो ना. चलो, लास्ट डे आई टोल्ड यू ना, जस्ट डू MCQs. अब नोट्स पढ़ने का फायदा नहीं है. अगर कोई बोल रहा है मैं अभी भी नोट्स पढ़ रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी नाउ आस्क्ड एवरीवन टू डू एटलीस्ट 500 MCQs पर डे. 5000 क्वेश्चन करके जाओगे ना, यू विल गेट एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दैट. एंड वी आर ट्राइंग टू कवर द मोस्ट इफेक्टिवली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. रेस सेशन यार जरूरत ही नहीं है रेस की. ऑलरेडी मैंने कहा ना, रेस के वीडियोज आर अवेलेबल. कोई बार बार तो नहीं कराता यार. आप लोग जब लेते हो अपनी ऐप जितनी भी मार्केट में, डू यू थिंक दे रिकॉर्ड एवरी सेशन? और 2-3 साल में एक बार रिकॉर्ड, आप वो तो देखते हो. यहाँ पे आप कह रहे हो हर सेशन में, नहीं पॉसिबल. यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल, यू कैन गो वॉच एंड स्टडी फ्रॉम दैट. नो नीड टू यू नो डू इट अगेन. ठीक है, लाइव वैसे भी available already, sir. Yes. So sir has distributed every lecture as a free Yeah. lecture for every student. सो जस्ट And वॉच this is a देम, very खत्म plus करो. point और for क्या, sir. बिल्कुल. क्योंकि Time सर एकदम wasting सोशल वर्क जैसा, yes, for every student. Everything is yes, sir, available. everything Plus we are for giving free. free mock test, GT and LCF. More than 2000 students are giving our GTs mock test free of any charge. Also CBT was conducted for students here. CBT भी कराया for हमने Delhi, हाँ. for Delhi students. So we are trying our level best to give everything possible. Okay. Yeah, main question थी, read the theory of the question, that will be beneficial. होता क्या है ना, there are 2 things of remembering something. Okay, like the best will remember your wife's or birthday is to forget it once. ये किसने कहा है? ठीक है, एक बार भूल के देखो, उसके बाद जिंदगी भर याद रहेगा. तो वही है, एक बार आपने क्वेश्चन गलत किया ना, सो दैट कॉज अ नेगेटिव फीडबैक, यार इसका आंसर मेरा गलत हो गया. दैट कॉज अ फियर एंड बेटर रिकॉल. बजाय थ्योरी पढ़े जा रहे हो, अब वो थ्योरी में कोई नेगेटिव फीडबैक तो है नहीं, सब बस हाँ वेरी गुड, पढ़ लिया, एंड में आउटपुट कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम लग रहा है. पर जब क्वेश्चन गलत होता है ना भाई, उसके बाद ना थोड़ा सा ये करो कि हाँ यार इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. सो रीड द थ्योरी ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव गॉट रॉन्ग प्रॉपरली. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द फर्स्ट टू राइज इन MI, क्या है इसका आंसर? व्हाट शुड बी इंक्रीज द फर्स्ट इन केस ऑफ, you watch my FSM यार, it's 4 hour FSM and it cover everything in forensic. 10 out of 10 question, my assurance 10 out of 10 question will come in forensic after watching. Yes, exactly same question थे. Yes, so my question is, okay, tell me, IPC नहीं आएगा ना BNS आएगा, my promise. Yeah, tell me now, what will be rising the first in MI? क्या बढ़ेगा भाई MI में सबसे पहले? भाई फिर से मैं बोलूंगा, INI CT मत करो. इफ़ यू आर डूइंग INI सेट, ठीक है, तो मैं एक एडवाइस करूंगा, अगले साल एग्जाम देना फिर. ठीक है, INI सेट कर लो अच्छे से, गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर. फालतू की बातें करते रहते हो यार, कैसे कर लोगे? वो वैसे बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लस कंफ्यूजिंग है, मल्टीपल ऑप्शन सही है, वहाँ दिमाग घूम रहा है. इसके तो 2 सही लग रहे हैं. ओ भाई एक ही ऑप्शन है तुम्हारा, फालतू की चीज़ मत करो. लास्ट मोड पे पूरा पैनिक मोड में चले जाओगे. और क्या, और INI CT में गलत होगा ना तो और नेगेटिव जाएगा. अच्छा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, रहने दो ना. देखो बुरा मत मानना, कभी कभी चीज़ें अपनी है ना हैसियत औकात अनुसार करनी चाहिए. अभी आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की, आपने डबल ट्रिपल आंसर सही है उनकी, तो फिर क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, सो द अगेन द आंसर इज हार्ड फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, सेकेंड इज मायोग्लोबिन. वाई? बिकॉज दिस हार्ड फैटी एसिड HFABP rises within 30 minutes and myoglobin after 1 hour. So obviously better answer is this. Again यहाँ पे आपको गलत होगा ना तो आपको शॉक लगेगा, अगर नहीं है तो मायोग्लोबिन लगा के चल जाओगे. ECG के अंदर फर्स्ट चेंज इज टॉल T वेव, ST सेकेंड चेंज. ठीक है महेश कुमार, तभी कह रहा हूँ यार, अभी है ना क्वेश्चन करो, गेट लॉट्स ऑफ रॉन्ग, इट इज बेटर.
रादर देन, हाँ ये भी ना करो सिर्फ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, जीटी दिए जा रहे हो, ठीक है गलत भी होगा कोई बात नहीं। ओ भाई मॉक टेस्ट का पर्पस होता है देखना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। देन यू हैव टू करेक्ट योर एरर। सो एरर करेक्शन इज बेस्ट। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर, इफ आंसर इज राइट वेरी गुड, नो नीड टू रीड द थ्योरी, बट इफ द आंसर इज रॉन्ग मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा और अंदर घुसेड़नी पड़ेगी उसकी एक्सप्लेनेशन। सो डू द एक्सप्लेनेशन ओनली व्हेन योर आंसर्स आर गेटिंग रॉन्ग। आर यू क्लियर? और इस टाइम पे कंट्रोवर्सी मतलब मैं फिर से बोलूंगा, डोंट टेक एनी कंट्रोवर्सी। सर इसका आंसर क्या लगाना है सर, ये एपिग्लोटाइटिस में सर मैं ये निमोनाई लगाऊं या इन्फ्लुएंजा, जो मर्जी लगा दे यार, अब टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो, या बारात खड़ी है बाहर और तुम पूछ रहे हो कि मैं है ना दूल्हे के लिए बिरयानी बनाऊं, भाई जो बनानी थी बना ली, अब टाइम नहीं है बिरयानी लाने का उसके लिए, सही है, अब तो वो आएगा शादी होगी। सो दैट्स व्हाई नाउ टाइम इज नॉट फॉर सॉल्विंग द कंट्रोवर्सी। सर कंफ्यूजन ठीक कर दो, तुम अभी भी कंफ्यूज हो भाई, जो पढ़ना है पढ़ो यार, ठीक है। अब टाइम नहीं है क्या करने का, इसका राइट आंसर किस बुक में देखूं, जो लगाना लगाओ। एमटीपी एक्ट, इफ यू हैव नॉट डन इट थोरोली इट्स अ बिग मिस्टेक। नाउ तो यू शुड सॉल्व ऑल द एमटीपी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो पीवाईक्यू जो आपका छूट जाए। सो माय रिक्वेस्ट इज सिंपल, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके या। So that is why please make sure that all your PYQs are done. At least if you not read the theory, at least read the answer. ठीक है आपने नहीं पढ़े हेल्थ प्रोग्राम, बट व्हेन यू आर डूइंग द, सर वो नया वाला कोई अपडेट आया था निक्षेप पुक्षेप में, अरे भाड़ में गया यार, अब नहीं। जस्ट रीड द क्वेश्चन, रीड द आंसर, इफ राइट वेरी गुड, नहीं है ना तो आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग द थ्योरी एंड देन सॉल्विंग क्वेश्चन, नो वो पहले करना था, अब सिर्फ करना है क्वेश्चन आंसर बस। यस ठीक है और बताओ भाई, ठीक है बताओ भाई बताओ एनीथिंग एल्स? इमेज बेस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड भाई, इमेज वाली पढ़ी है आप, उसको देख सकते हो, और ज़्यादा इमेज के चक्करों में मत पढ़ो। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इमेज वाले जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं सिर्फ 10, जो 10 मतलब ये नहीं इमेज तो 30 आएंगी, पर जो एक्चुअल इमेज है जिसको सॉल्व करना है वो 10 ही है। 20 क्वेश्चन आर जस्ट हेल्पिंग, द इमेज इज जस्ट अ हेल्पिंग पॉइंट इन द क्वेश्चन। इवन इफ या इवन यू डोंट सी दैट, लाइक मैं बताऊँ कई ईसीजी में आपका इमेज का फायदा ही नहीं है, वो ऑलरेडी थ्योरी बता देंगे, नैरो क्यूआरएस है, टैकीकार्डिया है, आपको पता ही है, एसवीटी है, इसमें इमेज देखनी। हाँ वो हिस्ट्री मिल गई है उसमें लूसिड, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए इतने ज़्यादा इमेज के मत पढ़ो। क्यों? बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इफ समवन आस्क यू टू रिमेंबर अ टेलीफोन डायरेक्टरी, बोले टेलीफोन बहुत मुश्किल है ना, क्यों? व्हेन सिमिलर थिंग्स आर देयर योर ब्रेन गेट कंफ्यूज। इफ यू सी ऑल द इमेजेस वन प्लेस ना, आई कैन अश्योर यू इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि शुरू की 10 15 20 इमेज के बाद आपके दिमाग में कुछ घुसेगा भी, ठीक है। यू कैन ट्राई इट, ओके। मैं आपको बोलूंगा नाम, ठीक है, संधू, संधू सोनू, सोनू पपलू, पपलू कंपू, टम्पू कमलेश, सातवें कर दो भाई, सर क्या नाम बोल रहे हो सर, वही है यार, अवर ब्रेन हैज अ लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी, डोंट ट्राई टू कहते हैं ना सैचुरेट इट। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज, उसी की बात कर रहा हूँ, जनवरी विल डू, ओके या। सो जनवरी वी आर गोइंग टू डू दैट या द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके। बिकॉज अभी मैं कह रहा हूँ आप खुद से कर लो, देन लेट मी डू इट। अभी मैं कराऊंगा, आई नो दिस 11 12 डे, फिर आपका होगा कि ये गलत हो रहा है, अभी आप खुद से कर लो, देन लेट मी डू इट, ओके। आई डू इट मोर प्रोफेशनली, सो जस्ट वॉच फॉर दैट, ओके। माई blessing is always with you Nishant bhai, everyone here is with us and we want everyone to get the exam done and pass, and we know you are all going to do well. Only thing is the, yes, right approach is needed. इवन इफ यू हैव नॉट रेड थ्योरी ऑफ अ टॉपिक, अब आपने बोला सर मैंने कभी मान लो क्या नहीं पढ़ा, एसिड बेस नहीं पढ़ा, अब पढ़ लूँ, यार अब पढ़ भी लोगे ना तो याद नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन इफ यू स्टडी 1 आवर लगा के एसिड बेस पढ़ लिया, सर मैंने उससे पढ़ा उससे पढ़ा, सर मैं तो कापलान से पढ़ लिया, भाई तुम कहीं से ही पढ़ लो, एट द एंड ब्रेन तो तुम्हारा वही है ना, ठीक है, देसी इंडियन जो क्या है, अब पैनिक कर चुका होगा तो वो नहीं याद करेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट फोकस ऑन थ्योरी टू मच, डू क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी, ठीक है। इसे कहते हैं रेट्रो मोड। हमने यही किया एमबीबीएस में, हमने पढ़ाई करी, बट फॉर द टाइम ऑफ एंट्रेंस नन ऑफ अस वाज लाइक केपेबल ऑफ इवन रीडिंग। किससे पढ़े यार, सारे नोट्स पढ़ने कहाँ कहाँ चले गए, ठीक, किससे पढ़े? तो हमने क्या किया, वी टुक द, हमारे टाइम पे तो हुआ नहीं ये, ऑल द बुक्स दे यूज्ड टू बी, हम क्या करते थे, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एंड हम देखते गलत हो गया तो उसकी थ्योरी पढ़ ली, एंड दैट वे वी वर एबल टू लाइक गेट बेटर आइडिया। एंड बिकॉज शुरू में हमारा 50 40% स्कोर आया, फिर 60 70, एंड आते आते 70 80% तक हमारा स्कोर पहुंच गया था। क्यों? बिकॉज थ्योरी से जब आप पढ़ते हो तो उससे 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं। अ रॉन्ग आंसर explanation can cover 10 future questions, so that's why my request is only focus on that. Thank you very much Dr. Jakar. चलो।
Anything else you would like to say? Yeah, I'm just giving you the right. Okay. Hello, Dr. Laura Steinberg. So yes, I really wish you people do the well. And I told you the topics. Again, I'll tell you the topic abortion. नहीं किया, it's a big crime. ठीक है? क्या बात है डॉक्टर सजल, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई for passing. I hope best of luck for your NEET PG preparation. Okay. Abortion नहीं किया, it's a very big mistake. You have to do it. It's an important topic. Okay. Then if I ask you in physio में 8-10 चीज़ें, ट्रांसपोर्टर, एक तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, वो एक्टिव पैसिव वाले पक्का करके जाना, ठीक है? हाँ, ग्लूट, SGLT उनके फेवरेट है, उनके बिना उनका खाना नहीं पचता एग्जामिनर का. सो प्लीज डू दैम, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन आई टेल यू, ठीक है, do only FMG Q bank first. If you are able to finish it on time, then go for NEET. I can assure you, NEET PG जिसने किया है ना, he will not fail the exam. That's my promise. Anyone who's done each and every NEET PG of the past 5 years, they will not fail. I give it open challenge. Any student who has done, और ऐसा नहीं सिर्फ देख लिए हैं, प्रॉपर तरीके से, means you know the answer and the explanation, then no one will fail you, because I have been giving the NEET PG for past 5-6 years continuously, okay, except the COVID year, and I know that these questions are the same question I discuss for FMG exam. Whenever FMG exam come and the people tell me, I say अरे यार ग्रीस बॉक वहाँ आया हुआ था, अच्छा ये इंस्ट्रोमा यहाँ पे आ गया, विपल स्टार्ट दे रखा है. I am shocked to hear almost all the question which you people get in FMG exam, they're almost topic कह रहा हूँ. या कई बच्चे इतने, बुरा मत मानना, शायद आई थिंक उनका कुछ दिक्कत है समझने का, वो कहते हैं सर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता यार. एग्जैक्ट तुम्हारे घर में पेशेंट भी नहीं आते, तुम्हें क्या लगता है पेशेंट सारे सेम आएंगे, ऑल मेंजर ऐसे आएंगे, ऑल स्पैस नहीं यार, वेरिएशन इज ऑल्सो पॉसिबल. सो यस, द टॉपिक्स आर रिपीटेड. नीट पीजी के जो टॉपिक हैं वही एफएमजी में आते हैं. सो दैट्स व्हाई माय रिक्वेस्ट इज प्लीज 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 डू देम प्रॉपरली. DT score is coming 146. मैंने कहा ना, do the PYQ based theory, it will automatically improve. That is my advice. Okay, anyone else? Okay, Dr. Dhruvi, good evening. So anything else you want to ask, please inform me. I am here and me and Dr. Shaurya will solve all your queries. Yeah, कुछ भी है तो बिंदास होके बोलने का. Yeah, anything else? Any other advice, anything? And we'll be having sessions regularly. Today so we're just doing a angel. Tomorrow we'll plan to do what? क्या कहते हैं शौर्य? Tomorrow we can do a proper important topic. Okay, like we can discuss a topic. ठीक है, अभी जैसे 1 मिनट में कोई टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, कि सर 1 मिनट में क्या पढ़ सकते हैं, तो 1 मिनट में लेट्स से यू कैन स्टडी एनीथिंग, लाइक ECD पढ़नी हो या कुछ भी हो. लेट्स से मान लो MI है, सो MI में क्या क्या याद करना है. MI में सबसे पहला है, आपको देखना है पेन इज रिलीव्ड और नॉट रिलीव्ड. If pain is worsening, chest pain, okay, worsening, and the patient would take nitrate, even they are not working, then you suspect it is unstable angina, okay. And if it is very severe, the patient has to be brought to the hospital. It could be MI or it could be unstable angina. That is on the base of ECG and biomarker. Clear? If biomarker is positive, that means it is MI. But it is whether ST elevated or non-ST, that is only on the base of ECG. So if they ask you what is a better investigation, I'll always say ECG is far superior. Okay, biomarker just confirm, but ECG become the best because the treatment depends mainly on the ECG, features of ST elevation. अगर ST elevation है, we will try to do the बट नॉट थ्रोम्बोलाइसिस. फिर से आप पता नहीं कहाँ से गलत पढ़ के आते हो, सबके सब बच्चे सर सोनम मोना सोना. ओ भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज आजकल यूज़ ही नहीं करते. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे यूज टेनेप्टेप्लेस, तो फिर तो ये टोना बन गया, टमोना बन गया, पता नहीं. सही, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपडेट करो अपने नोट्स. फर्स्ट इज, इफ दैट इज द केस, द प्रायोरिटी ऑफ एवरी हॉस्पिटल एज पर दिस अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन, उनकी भी यही है, ट्राई टू डू व्हाट फर्स्ट, द बैलून एंजियोप्लास्टी. ठीक है, वो कहते हैं 90 मिनट इफ पॉसिबल यू शुड पुट द बैलून एंड इन्फ्लेट द बैलून. सो दैट इज वाई द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एक्चुअली नाउअडेज एंजियोप्लास्टी एंड इज अवेलेबल वाइड स्प्रेड. अर्लियर व्हेन वी वर इन कॉलेज दैट टाइम तो थ्रोम्बोलाइसिस ही कर सकते थे. देयर वाज नो चांस ऑफ डूइंग. क्यों? एम्बुलेंस आएगी, पहुंचेगा, और ओटी हमारे काम नहीं से. नाउअडेज ऑलमोस्ट ऑल बिग हॉस्पिटल विद कार्डियोलॉजी लाइक सेंटर, दे हैव फैसिलिटी ऑफ डूइंग this what do you say, angioplasty anytime. Okay, even if I go now, they will get me angioplasty done. So that is why nowadays it's available. So best answer should be try to go for angioplasty, balloon insertion and this stenting within 90 minutes up to 120. If not possible, then we do thrombolysis, and most usually nowadays streptokinase is used less.
10 tablets. Why? Because it's given single dose, and that's why it is much more easy and like more effective compared to the streptokinase, which is the older one we used to give what in infusion, continuous infusion. So that is what I'm telling you. It is very very important to get the main concept. Okay. फार्मा में अगेन आई टेल यू जस्ट डू द ड्रग ऑफ चॉइस, खत्म मत करो। अब मैकेनिज्म वगैरह क्या याद कर लोगे, ठीक है। कोई बोले कौन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करती है, वो तुम्हें तब याद नहीं हुआ एमबीबीएस में या अभी जब कोचिंग कर रहे थे। आपको लगता है आज एक दिन पहले पढ़ोगे याद हो जाएगा? इम्पॉसिबल, ठीक है। आए तो बोलूँगा ठीक है वो मेरी किस्मत है, एटलीस्ट आई शुड डू ड्रग ऑफ चॉइस प्लस द क्वेश्चंस PYQ, एटलीस्ट एक दो ग्राफ तो आते हैं। वो डीआरसी वाले ग्राफ कर लेना, उससे क्वेश्चन आ जाता है। डीआरसी राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट पोटेंसी, पता ना आपको, पोटेंसी इज लेफ्ट शिफ्ट और एफिकेसी इज इट गोज अप, फ्लाई अप इज एफिकेसी, वो सब करके चल जाओ। चलो फिर एंटीसाइकोटिक्स टिपिकल ये सब इंपॉर्टेंट है। वही तो मैनेजमेंट पढ़ लो। अब मैं आपको फिर बताऊंगा, मैनेजमेंट करो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय आप वो क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म्स डोजेस छोड़ो ना, सिर्फ मैनेजमेंट बस खत्म। लास्ट में हाँ इतना ओपी पॉइजनिंग यस 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 सबका सबका एट्रोपिन पॉइजनिंग, या इट्स मोर देन सफिशिएंट भाई। आनंद ही सेइंग कि डन पैथो, अगर नीट के PYQ कर लिए मोर देन सफिशिएंट, एंड आई एम टेलिंग यू एनीवन हु इज डन नीट PYQs they will be so happy. NLC is the only institute which keep focusing on NEET PG PYQs since the beginning. Clear? Others say अरे क्या जरूरत है, वो तो FMG भी नहीं करा रहे थे PYQs. Only after we start launching this PYQ book, PYQ based session, and in fact people started becoming aware अच्छा PYQs भी करने होते हैं. Otherwise they were not focused. They will read some books from the market without checking their authentic PYQs or not. Only in the NLC Q Bank we make sure that all the PYQs are covered, NEET PG, and just for extra we added INICIT PYQs also. So we know that the importance of PYQs is extreme, not for, यहाँ कई बच्चे कहते हैं सर PYQ रिपीट नहीं होते। यार बुरा मत मानना, आपका सही में IQ कम है क्या? आपको ये बात समझ में नहीं आती कि एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ा है जो आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन लगा के दे देगा। क्यू बैंक है, क्वेश्चन सफल होते हैं, शफल होंगे तो टॉपिक शफल हो सकता है, क्वेश्चन सेम कैसे आ जाएगा यार? वो कह रहे हैं सर एक ही क्वेश्चन आया था, आपने जो बताया था उसमें से। मैं कहा एक भी नहीं आ सकता। आई एम वेरी मच श्योर देयर विल बी नो सिंगल क्वेश्चन विच आई डिस्कस, बट देयर विल बी टॉपिक। आई डिस्कस क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आई डिस्कस कोहॉर्ट स्टडी, और बोली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर। अब बोले एग्जैक्ट सेम ऐसा नहीं आया, फिर तो क्वेश्चन मार्क भी शायद नहीं होगा, एक ही जगह पे दा लगा होगा, है ना, 820 25, ये बचकाना है। आई फील वेरी सैड अबाउट दिस काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ द सेशन। प्लीज ये सब मत करो, बी मैच्योर, डू द PYQs एंड डू देम प्रॉपरली, थिंकिंग कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है उससे मेरे टॉपिक लग जाएंगे। ओके चलो GT नाउ डोंट गिव एनी GT, ठीक है। GT हो गए, ठीक है। अब ज्यादा GT करोगे तो बस आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब GT पैनिक मोड में आ जाते हैं लोग, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पता है इंप्रूव तो होगा नहीं स्कोर, ऐसे में फिर चेक ही क्यों कर रहे हो? सही है, चेक करने से चीजें थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगी। अब 10 डे, सो दैट्स व्हाई आई नाउ एडवाइज डोंट ट्राई टू गो फॉर GT। ऊपर से 5 आवर्स वेस्ट ही होंगे। GT में होता क्या है ना, नो वन रिव्यू द आंसर, आई टेल यू द ट्रुथ, नो वन एक्चुअली रिव्यू द GT। वो ऐसे नहीं करता GT हो गया 300 क्वेश्चन, चलो आओ देखता हूँ भाई। GT देखे ना ऐसा होता है कि बस सुला दो, और एग्जॉस्टिंग होता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग नीट PG आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स। रीजन इतना हेक्टिक था यार, सब दिमाग पूरे मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी मेरी सारी निचुड़ के आ गई। क्यों? बिकॉज वेरी हेक्टिक। सो इफ यू गिव GT 5 आवर तो आपके गए। लर्निंग क्या हुई? घंटा लर्निंग हुई है, पता ही नहीं कौन सा सही है, बस स्कोर दिख गया मेरे 148 आए 150, ठीक है। व्हाट अबाउट द रॉन्ग आंसर्स? नो वन इज गोइंग टू चेक। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट गिव GT, फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट PYQs एंड देयर थ्योरी। ओके मैं कह रहा हूँ ना, रॉन्ग आंसर का PYQ का एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। ओके एनीथिंग एल्स भाई? या so many people are watching us, and I think after a long time we are like, so anyone want to say something, anything? Okay, because yes, ठीक है। So I think I'll end the session, it's almost half an hour. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, मैं बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू पास। ओके आई टोल्ड यू द सीक्रेट मंत्र। आई एम डूइंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यू डू योर लेवल PYQs, लेट मी डू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सी द मिरेकल। इवन इफ यू आर गेटिंग 120s, द 30 मार्क्स आई विल गिव यू, ठीक है। जस्ट डू द सेशन विद मी, एंड आई वॉन्ट यू टू बी लाइव विद मी ऑन यूट्यूब। ये इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकता, उसके लिए मेरे को लिखना होगा, वो हम यूट्यूब पे करेंगे। बी लाइव विद मी ऑन द यूट्यूब एंड डू इट डेली 2 hours फॉर मी फॉर द लास्ट 5 days। इन 5 day 2 hour 10 hour वी विल कवर ऑलमोस्ट ऑल। ऐसा लगेगा हमने एग्जाम ही 2 बार दे दिया, एंड दैट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन टॉपिक्स। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स, एंड दिस विल गिव यू द एक्स्ट्रा एज। ओके चलो
या क्यू बैंक कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, नो नीड टू स्टडी द थ्योरी, इग्नोर द थ्योरी, थ्योरी की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको, जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। या रेस इज सफिशिएंट, अब LRR क्या करोगे यार, अब टाइम ही नहीं है भाई, तो स्किप करो, कोई थ्योरी पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, थ्योरी अब हो चुकी खत्म, अब करना है क्या, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर प्रैक्टिस, इज अ टाइम टू फाइट योर डीमंस बाय अप्रोचिंग देम। अब तो उठाओ क्वेश्चन, ले लो भाई एनाटॉमी, जो भी होगा, नहीं भी आता कोई बात नहीं यार, गलती तो होगा, ठीक है, तो वैसे भी सही नहीं हो जाएगा, तो एटलीस्ट बाय रीडिंग द आंसर यू विल गेट एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन राइट, ठीक है, चलो। सो यस, विल पोस्ट द schedule very soon, you can do that, yeah, just do the Q bank, okay, and see if there's a doubt now you can review the notes, I'm not saying, let's say कोई टॉपिक पढ़ा आपने, एकदम से आ गया कि सर मुझे लग रहा है ये जो उसकी मैनेजमेंट थी ना हाइपरटेंशन की, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आया, तो देन यू कैन रेफर टू द नोट्स, टाइम वेस्ट होगा, पर अगर आपको लग रहा है ना, गो फॉर द एक्सप्लेनेशन इन योर नोट्स कि अच्छा यंगर पेशेंट में ये है, डायबिटिक में ये करेंगे, अगर ACD नहीं काम कर रही है तो स्पाइनोलेक्टोम देंगे, पर देन आई एग्री, क्योंकि समटाइम द एक्सप्लेनेशन इज नॉट वेरी गुड, आई एग्री, सो दैट टाइम यू कैन चेक द नोट्स, अदरवाइज इग्नोर, टाइम नहीं है यार, अगर टाइम होता ना तो मैं तो पता आपसे क्या बोलता, स्टडी गैनोंग, गाइटन, हार्पर, लिपिन कॉर्ड, सही है, टाइम होता, टाइम है नहीं है ना, तो फिर ये तो वही बात कर रहे हो, काश में बिल गेट्स होता, ठीक है, तो वही बात है, बिल गेट्स होते तो होते ना, काश वाली बात है ना, तो फिर सभी चाहते हैं बिल गेट्स होना, एलोन मस्क होना, पर होना अलग है भाई, इस टाइम पे हमारा टाइम ही नहीं है, सही है, अभी तो हमारा ये है कि टाइम इज लाइक कि बस ऐसा हो जाए कि एक भी घंटा वेस्ट ना हो, चलो, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लेट्स मीट सून, tomorrow also we'll do same time and we'll discuss some important topics okay yes, tomorrow, chalo, take care, bye bye, good night to all of you, Shaurya, good night everyone, bye, and just whatever sir told उसी हिसाब से करते चलो, क्योंकि बिल्कुल, मोड ऑफ गाइडेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, वही है प्रोटोकॉल सबका, वही है जो बिल्कुल बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ, रेट्रोग्रेड, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर एनीथिंग, कुछ याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, एंड में जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, सुना है, दैट इज देयर, एंड यू कैन मे बी मेक इट बेटर बाय डूइंग क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग नाउ, लास्ट 10-11 डे लर्निंग बेवकूफ़ी है, ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आप एग्जाम से घंटे पहले बोल रहे हो चलो अब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ, 1 घंटे पहले टेक्स्ट बुक, वो हिंदी की कहावत है ना, भोज के समय कोहड़ा रोकना, so it's just like तो that. कह रहा हूँ ना, So you cannot do anything. एक वही बात है, बुला लिया घर पे बिरयानी के लिए, कह रहा मैं चावल खरीद के लेके आता हूँ, मैं पहले चावल लाऊंगा फिर उनको उबालूंगा, इतना मारेंगे वो, इतना मारेंगे, ठीक है, इसलिए भाई ऐसा नहीं करते, अभी टाइम है बिरयानी सर्व करने का, नहीं है तो बाहर से ऑर्डर कर लो जोमेटो से, पर अब बिरयानी मत बनाओ, अब टाइम नहीं है बिरयानी बनाने का, ठीक है, डोंट मेक बिरयानी नाउ, ओके, चलो, सो विल एंड, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है, Bye, good night everyone. गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उत्कर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई।